The Election Commission of India has launched a special intensive revision of SIR, a nationwide exercise to verify and update electoral rules ahead of key state elections. This is the 9th such revision since independence and the first in over 2 decades. The drive aims to clean up voters' lists by removing duplicates, deceased voters and ineligible entries, while adding new and eligible citizens. Covering 51 crore voters across 12 states and union territories, the SIR follows a pilot in Bihar where over 68 lakh names were deleted. The Commission calls it a constitutional duty to ensure free and fair elections and says improvements like longer notice periods and multiple verification visits will make Phase 2 more transparent. While the Election Commission calls it a step towards electoral integrity, political reactions across the country tell two very different stories. The BJP and its allies have welcomed SIR as a long overdue reform to eliminate bogus voters and strengthen national security. BJP spokespersons Shehzad Poonawalla and K.A. Ghosh described it as a constitutional triumph and a battle to protect democracy against fake and foreign entries. Leaders argue that verification drive is essential to prevent electoral fraud, especially in border states like West Bengal and Uttar Pradesh. They say the new measures like the 54-day notice period addresses earlier procedural gaps seen in Bihar and will restore confidence in the system. भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को स्वागत करती है। हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो वैध वोटर्स है, पश्चिम बंगाल और भारत के जो वोटर्स है, कोई आउटसाइडर्स, फॉरेन वोटर्स को रहना नहीं चाहिए, तो हम लोग स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी या पश्चिम बंगाल सरकार डर रही है क्योंकि उनका जो बेस है वो ही अवैध वोटर्स और फेक वोटर्स का है, इसीलिए वो इतना डर रही है, इतने तिलमिला रही है। और यहाँ पर जो है ममता बनर्जी को जो कोर वोट बैंक है वो रोहिंग्या है, जो घुसपैठिया बांग्लादेशी है, ये इनका वोट बैंक है, तो इसीलिए तिलमिला रही है क्योंकि उनको मालूम है कि एसआईआर के बाद जो अवैध वोटर्स है उनका नाम निकाल बाहर कर दिया जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी है और एसआईआर का जो मुद्दा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और एसआईआर आज़ादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है, और जो अवैध हैं, विदेशी हैं, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। अगर फर्जी लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, अगर वो वोटर लिस्ट में नाम रहेंगे, जो मर चुके हैं उसका नाम अगर सूची से नहीं हटाएंगे तो फिर तो वोटर लिस्ट ठीक नहीं होगा। तो शुद्धिकरण होना चाहिए ना वोटर लिस्ट का, इसलिए उनको समझ में आना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा काम कर रहा है तो सब उसको सराहना करना चाहिए, ना कि इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना। देखिए, अभी मैंने वो ईसी की जो ब्रीफिंग होने वाली थी मैंने अभी देखी नहीं है, तो कौन कौन से स्टेट्स में क्या हो रहा है मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जो ज़रूरी है और होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है अच्छा ही है ना, एक बार ये सारा जो हमारे जिस तरह से हमारे वोटर लिस्ट में जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो एक बार सही हो जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। उल्टा मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, मेरे क्षेत्र में जब मैं चुनाव लड़ रही थी उस समय कम से कम 30,000 लोगों के नाम नहीं थे, तो जो वोटर्स हैं यहाँ के उनके नाम नहीं थे, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले। तो वो जो करते हैं वो सब जानते हैं, और हम लोग तो भाई जो गलत हुआ है उसको सही कर रहे हैं, और इसमें अच्छा ही है। I welcome this decision. It is quite natural that SIR will be conducted throughout the country as stated previously by the Election Commission. As you know, after this press conference, ECI announced SIR will be done in the 12 states, including West Bengal. All kind of speculation, misunderstanding, confusion, whatever spread by the opposition, now it's going to be stopped and SIR will be conducted smoothly. I hope that the opposition will also support the SIR to be fulfilled in a complete way, so that the voter list cleansing will be done by the Election Commission itself. As all we know, the main objective of the SIR to eliminate, to delete the dead voters, double, triple entry voters, and also
those who are the intruders included within the voter list, they will be eliminated from the voter list, and a clear, transparent voter list will be helpful to give a transparent government. अरे ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकतंत्र के लिए मजबूती है कि खतरा है? एसआईआर हमारी संवैधानिक बाध्यता है, संवैधानिक जिम्मेदारी है करवाने की चुनाव आयोग की। ये जरूर होना चाहिए। लोग मरते हैं, लोग स्थानांतरण करते हैं, तो मतदाता सूची शुद्ध नहीं होनी चाहिए। इनका लोकतंत्र में भरोसा ही खत्म हो गया है, क्योंकि हारते हारते अब इनको लोकतंत्र से ही दुश्मनी हो रही है। नासूर हैं ये लोकतंत्र पे, खासकर कांग्रेस पार्टी या ये गांधी परिवार। डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने सहयोगी दल को 2 नवंबर को चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक बुलाया और कहा कि हमें एक साजिश का वो संदेह लग रहा है। कौन सी साजिश भैया? एसआईआर में कौन सी साजिश है? वोटर लिस्ट शुद्धिकरण में कौन सी साजिश है? हैं? जरा समझाएं लोगों को। इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या? वोटर लिस्ट शुद्धिकरण करवाने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? मरे हुए लोगों का नाम क्यों हो? जो स्थानांतरण कर गए वहां पे नहीं रहते उनका नाम क्यों हो? डुप्लीकेट नाम क्यों हो? एक ही व्यक्ति का नाम 4 जगह मतदाता सूची में क्यों हो? ये शुद्धिकरण होना जरूरी नहीं है? इसमें साजिश लगती है। डर है होगा तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। महागठबंधन आज अपना घोषणा पत्र का, अरे कौन सा घोषणा पत्र? मरल पत्र लोग अपना घोषित करेंगे। आसमान से चांद तारे हिमालय सबको जमीन पे ले आएंगे ये उठा के। नवमी फेल घोषणा पत्र के लीडर हैं ये सब के सब जो हैं डेलीरियम में है, कंफ्यूजन। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका भविष्य क्या है। मैं बताता हूं, पक्का तिहाड़ जेल। नहीं, ये एक बहुत बड़ा कदम है और मैं समझता हूं कि इतनी गंभीरता के साथ में एक पारदर्शी और एक निष्पक्ष चुनाव की संभावनाओं को दृढ़ता के साथ सुनिश्चित करने का सद प्रयत्न मैं समझता हूं कि पहली बार कोई चुनाव आयुक्त कर रहा है। ये प्रशंसा का योग्य है। अलग अलग लिस्टें होना कि पता चला कि लोग मर चुके हैं 10 साल पहले फिर भी वोट डाल रहे हैं उनके नाम पर, दूसरे लोग घुसपैठी हैं और हिंदुस्तान में आकर वोट डाल रहे हैं। तो इस प्रकार की परंपराओं को समाप्त करने के लिए कि नगर निगम में कुछ और है, पता चला कि आपका नगर निकायों में कुछ और है, जिला पंचायत में कुछ और है, उत्तर प्रदेश में तो कई कई जगहों पर रोज ही चुनाव होता है जी। तो अलग अलग लिस्टें भी एक सी हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा कदम है। सर, डिम्पल यादव उन्होंने बोला कि खतरा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वोट को कैप्चर करने वालों के लिए, ये बूथों को लूटने वालों के लिए, ये जाली घुसपैठियों को, ये रोहिंग्यों को लाकर, बांग्लादेशियों को लाकर वोट डलाने वालों के लिए खतरा है। ये खतरा उनके लिए है जो लोकतंत्र की परंपराओं को नहीं मानते हैं। ये खतरा उनके लिए है जो सांप्रदायिकता का नंग नाच करके सनातन को चुनौती देते हैं। मैं समझता हूं लोकतांत्रिक परंपराओं को तो इससे खतरा हो नहीं सकता। और यह जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी गई व्यवस्था का एक अंग है, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव। और पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव तब होगा जब एक पारदर्शी जो मतदाता सूची है वो होगी, और पारदर्शी मतदाता सूची तब होगी जब एसआईआर ऐसी प्रावधानों को निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग संपादित करेगा। तो मैं समझता हूं कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का विरोध करने वाले ही इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। सर, कांग्रेस अब शुरू हो गया है एसआईआर को लेकर 12 स्टेट छत्तीसगढ़ को शामिल किया कल। अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। चुनाव आयोग के इस कदम को मतलब उसका स्वागत करते हैं और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। एसआईआर हो जाना चाहिए। देखिए, एसआईआर करवाना, चुनाव करवाना, चुनाव से पहले जो इलेक्टोरल रोल है उसकी इंटेग्रिटी कायम रहे, ये देखना, ये सभी कुछ इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व भी है, उनका संवैधानिक अधिकार भी है और हम तो स्वागत करते हैं। परंतु कुछ लोग एसआईआर के नाम पर, ये एसआईआर नहीं, बचाओ परिवार और संविधान पर वार, ये करने लगते हैं। आज सवाल ये पैदा होता है कि जो मंडली, जो जमात एसआईआर का विरोध इन 12 राज्यों में कर रही है, वही इंडिया अलायंस की मंडली
महाराष्ट्र में कह रही है कि वहां पर लोकल निकाय से पहले, लोकल चुनाव से पहले जल्द से जल्द एसआईआर हो जाए। तो महाराष्ट्र में एसआईआर चमत्कार और 12 राज्यों में गुनहगार। मतलब कितनी हिपोक्रेसी है इनकी। और बिहार में भी इन्होंने एसआईआर के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट में जो 47 लाख नाम डिलीट किए गए एसआईआर के माध्यम से, उसके खिलाफ 470 एफिडेविट भी नहीं दे पाए। उल्टा जो एक एफिडेविट दिया था वो भी झूठा निकला। इनके 80,000 बीएलए ने मिलकर एक अपील दायर नहीं की। तो इसका मतलब साफ है कि केवल और केवल 3D पॉलिसी अपनानी है। डी से डिस्टॉर्ट करना है, डी से डेफिसिट क्रिएट करना है संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, और डी से दंगे भड़काने की भाषा बोलनी है। जिस प्रकार की भाषा अब टीएमसी के एक नेता सिद्दीकुल्ला ये कह रहे हैं कि गर्दनें काटी जाएंगी, ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता वही है। चाहे वक्फ का विषय हो, चाहे सीए का विषय हो, या चाहे एसआईआर का विषय हो, ये संविधान के ऊपर वोट बैंक तंत्र को रखते हैं और अपने परिवार को बचाना है। इसीलिए एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। एक भी सही वोटर अगर नाम काट जाते तो फिर रक्त गंगा बहेंगे, टीएमसी बोल रहा है। नहीं, टीएमसी के अरे गहरे नेता अभी हीरो बनने जा रहे हैं। ये लोग देश के हित में कुछ भी होता है उसका विरोध में कूद जाते हैं, लेकिन ये चुनाव कमीशन निष्पक्ष रूप से कर रहा है। आज बिहार में कोई कंप्लेन है, उन्होंने बोला कि नॉट ए सिंगल कंप्लेन, नॉट ए सिंगल अपील, इसके अगेंस्ट में जो हो गया, सारे पार्टियों मदद किया, सब हुआ, यहाँ भी होगा। और जो वोटर है सही में उसका नाम कोई नहीं काट सकता, और जो डुप्लीकेट वोटर को अंदर करने का प्रयास करेगा उसको अंदर किया जाएगा। कोई भी नेता हो जो गैरकानूनी ढंग से बनेगा यहाँ वोटर, वो संभव नहीं होगा। कोई बांग्लादेशी, कोई और दूसरा वो नहीं बन सकता। और यही है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और पूरा सबको मदद करना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए देश के हित में। आशा है राज्य सरकार अपने दायित्व पालन करेंगे, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। बिल्कुल सही, राज्य सरकार का सहयोग चाहिए और ये जिम्मेदारी पालन करना चाहिए कि उन्होंने शपथ लिया है संविधान का। आज से एसआईआर स्टार्ट हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल का स्थिति आपको क्या लगता है? नहीं, स्थिति कुछ भी हो, बंगाल का स्थिति हमेशा खराब रहता है, लेकिन चुनाव कमीशन को धन्यवाद है कि पूरा देश में सही समय पर ये लोग एसआईआर शुरू किया है, और जिस प्रकार से बिहार में सफलतापूर्वक किए हैं, मुझे लगता है पूरा देश में ये एकदम शांतिपूर्वक हो जाएगा। We welcome SAR in Tamil Nadu. What's the ground reality is, every constituency in Chennai, probably about 14 constituencies are there in Chennai. Every constituency is infused with 20,000 to 30,000 bogus voters by DMK. The RK Nagar constituency, which was once held by our late leader, Purchi Telebi Amma, we sought the court intervention to remove close to 28,000 voters. Another 13,000 voters are on the pipeline. These are all bogus voters with double entries, death with no residences. So we submitted the proof and sought the court direction. In the case of 1,000 lights, 3,000 plus bogus voters were removed while we were in power in 2021. All these voters were re-inducted once DMK came to power. Now in the last appeal, which took place in September, the zonal officer gave a commitment and undertaking in the court that they will once again look into the list and try to do the needful. So this is the plight, and that's why DMK is so scared. The victory of MK Stalin and Udinidhi, his son, is only purely on this bogus voters list. And all the other MLAs of DMK, their biggest strength is these bogus voters through which they get elected. So it's quite natural for MK Stalin to get rattled and shaken once this initiative is launched. It's clear and evident that SAR is the need of the hour in Tamil Nadu. So meanwhile, DMK पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कितना हद तक हुआ है। सारे सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन बिगड़ गया है। हमारा साथ बांग्लादेश का 2200 किलोमीटर का भी ज्यादा एक पोरस बॉर्डर है, और पश्चिम बंगाल को एक पैसेज बनाकर, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, झारखंड, बिहार का भी डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो दूसरे प्रदेशों के साथ पश्चिम बंगाल का एक डिफरेंस है। पश्चिम बंगाल का जो सत्तारूढ़ पार्टियां है वो लगातार इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं, वो जानते हैं कि दूध में कितना पानी मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल की
हर नागरिक का ये मांग है कि ऐसा वोटर लिस्ट हो जिसका भीतर कोई बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी, रोहिंग्या, फेक वोटर्स, एक वोटर की नाम 4 जगह, खाली प्लॉट के ऊपर, जमीन का ऊपर, जिस जगह में कोई मकान नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन 10 वोटर 20 वोटर ऐसे करके घुसा रखा है, इसका नाम डिलीट हो जाए। तो इसी के कारण तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारत में सर्वशक्तिमान भारत की संविधान है, कोई ईश्वर अल्लाह नहीं है। तो इसलिए अगर संविधान को जो चैलेंज करेगा तो संविधान भी अपने भाषा से बात करेगा, यही स्वाभाविक है। ये जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी उन लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग चाहते हैं एसआईआर हो, पूरा पश्चिम बंगाल की आम नागरिक यही चाहता है एसआईआर किया जाए, और जो लोग बीएलओ होकर जा रहे हैं उसको सुरक्षा देने का जिम्मेदारी, उसको हर सुविधा मुहैया करने का जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हम विश्वास करते हैं चुनाव आयोग वो करेगी। But even as supporters hail SIR as a safeguard for democracy, opposition voices warn that it could end in undermining the very voters it seeks to protect. Parties including the TMC, Congress, DMK, CPIM and AAP have accused the Election Commission of bias and warned of large-scale voter deletion. TMC's Kunal Ghosh alleges harassment of genuine voters, while Congress's Pawan Khera calls the process a vote theft machine. DMK's Saravan Anaduria and Chief Minister M.K. Stalin questions the timing, intent and exclusion of documents like ration cards, calling SIR a veiled citizenship test. Critics also cite Bihar's gender and minority imbalances as warning signs and fear disenfranchisement of women, migrants and the poor. They demand transparency, publication of deletion lists and accountability from the Election Commission. First of all, we have seen in the last couple of days or couple of months before, there was hue and cry about the SIR conducted by the Election Commission of India. We have proved and we have proved with documents how the Election Commission become an agent of the BJP and help the BJP in installing the BJP government in the center in the last 2 general elections. If at all the election process to be free and fair, then Election Commission should be neutral and should uphold the dignity of the Commission. Now you see, special intensive revision of the voter list has been declared, and for 2026 election, those states who will go to the poll, there the SIR to be conducted. Now why Assam is not included in the list? In 2026, Assam will go to the poll, but there is no SIR to be done in Assam. Why? Why in West Bengal? Why in Kerala? Why in not a state where the election is not going to happen in Chhattisgarh? Why not in Assam? Why in Puducherry? Why in Tamil Nadu? What is the intention behind the SIR? Yes, we have nothing against the SIR, but the way the Election Commission is doing it, that is why we are raising our concern. Election Commission is working as an agent of the present BJP government, BJP party. Election Commission should be free, fair and must be neutral. The Election Commission job is to conduct a free, fair election by which the election process will be streamlined and the democracy will be strengthened. In this process, the democracy is being undermined. People's desire is not reflected in the ballot. The wish of the people, the desire of the people is not found in the result. That is a very big task. But there is no complaint. Who told you? Who told you? In Bihar, you see, SIR, the Election Commission, was wrapped by the Supreme Court.
asked why Aadhaar will not be a document for addition of the voter card. You see, they didn't take Aadhaar as a document. But after the direction of the Supreme Court, they have accepted Aadhaar. Whatever the process they were following for the SIR, that has been challenged in the Supreme Court. Now my point is, why Assam name was not included in the list of the states which are going to poll and where SIR to be conducted? Why so partisan attitude of the Election Commission? Why Election Commission is acting as an agent of the BJP? अंबेडकर जी के संविधान को बदलकर कमजोर तबके, अनुसूचित जात, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की जो कोशिश थी, जो दिया था अंबेडकर जी ने हर नागरिक को एक वोट का अधिकार, जब जनता ने ठुकरा दिया तो अब चुनाव आयोग के सहारे शुरुआत हुई है 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को SIR के जरिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की। मैं साफ कर दूं, कल हिम्मत नहीं पड़ी कि बता दें बिहार में कौन ये जो वोट थे, किस जाति, किस संप्रदाय, किस धर्म के थे। यही कोशिश होगी देश में, लेकिन विपक्ष भी एक है। हम अंबेडकर जी के, भारत के संविधान के दिए हुए कानून के मुताबिक वोटों के अधिकार की रक्षा करेंगे। इसके लिए हम सब एकजुट होकर वोट चोरी भाजपा को नहीं करने देंगे। जेडीयू के अब देखिए, जो स्थितियां सामने आई हैं उसमें जल्दबाजी में जो बिहार में हुआ, और बिहार में लगातार भाजपा के नेता ये बोल रहे हैं घुसपैठिए घुसपैठिए। तो 20 साल से तो आपकी सरकार है एनडीए की, घुसपैठिए किसके समय आए, कहां से आए, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए, इसमें भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। कौन से जिले में आए, किस अधिकारी, कौन डीएम था वहां का, कौन पुलिस का अधिकारी था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके समय कैसे घुसपैठिए आ गए अंदर, कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी चीजें की जा रही है, और अमित शाह के बयान ने ये साबित कर दिया कि चुनाव आयोग उनकी कठपुतली है, उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। जब से भाजपा आई है तब से एक साथ हो गए हैं। ये तो अमित शाह का बयान आ गया, कह ही रहे हैं कि हम पहले कई चरण में होते थे, फिर हमने 2 चरण कराया, अब अगले बार आप हमें बिहार में फिर ताकत दे दो, हम 1 चरण में कर देंगे। इसका मतलब कि चुनाव आयोग उनके कठपुतली बनकर रह गया है, पपेट है, जैसे चाहेंगे वैसे काम करेंगे। तो सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। SIR जो बिहार में हुआ, बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बनाया गया, और अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा है। SIR जब बिहार में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार तलब किया चुनाव आयोग को, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग बिहार की SIR से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। चुनाव आयोग को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए कि 2003 में जो SIR हुई थी उसके दिशा निर्देश सार्वजनिक करें, उन्हीं दिशा निर्देशों पर चलें, तब तो हमें बात समझ में आती है। अन्यथा चुनाव आयोग, जैसा कि मैंने आपको कहा, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। राहुल गांधी के सर जो जननायक है उसको लेकर अब कंट्रोवर्सी हो रही है। Yeah. The first and foremost, the question would be what the ECI has learnt from its experience in Bihar, and how does it got to implement those findings in these 12 states, and why Assam has been left out of this SIR. Assam is also going to polls. Do they have any specific information? And when did SIR become a citizenship exercise? Why the ECI is trying to bring in the criteria of citizenship? Is the Election Commission of India a citizenship finding unit? If so, how many illegal immigrants they were able to find out in Bihar? There are several unanswered questions. And in Bihar, 65 lakh voters have been pushed out. They were disenfranchised by the ECI because of their reluctance to accept certain documents. And of course, the Supreme Court has come in and said Aadhaar has to be included.
Aadhaar as a standalone document will be enough to ensure inclusion in the voter rolls. On what basis? Why have they excluded the other documents, the ration card, the Maganrega card, and other documents which were so long good? And the most important question would be why they are taking this, the 2003, as a cutoff year. They say that was the last SIR, and who will be benefited by that? If somebody's name is there in the SIR, how is it going to operate? Whether their children will be treated as the eligible voters or their grandchildren, how is it going to vote? Why there are no clear guidelines for all of this? And why suddenly the ECI has woken up and saying we are going to do this, we are going to do that? And we have seen how the Election Commission of India has colluded with the BJP and indulged in vote theft. The credibility of the Election Commission is at an all-time low. What have they done? These are all the questions, and the spectre of Bihar SIR is looming large on the way the Election Commission of India is operating. भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भाजपा नेता लगातार कह रहे थे 400 पार का नारा दे रहे थे, क्योंकि वो संविधान पर आक्रमण करना चाहते थे, बाबा साहब के संविधान पर। देश की जनता ने उनको उनकी हैसियत दिखाई और सरकार को बैसाखियों पर ला दिया। अब ये दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से संविधान पर आक्रमण का। ये चाहते हैं कि वोट चोरी करके ये संविधान पर आक्रमण करें, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। बिहार का उदाहरण चुनाव आयोग ने दिया कि बिहार में हमने सफलतापूर्वक SIR कराया। बिहार में जो लोग जिंदा थे उनको मृत बताकर उनके वोट काट दिए गए, बिहार में पलायन बताकर वोट काट दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, BLO मतदाताओं के घर तक नहीं गए, घर पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुसार ये SIR बिहार में किया है। ये तो हम देश में दोहराने नहीं देंगे। And as the debate deepens, the question remains, will SIR unite the nation in electoral reform or divide it over trust and intent? Can a reform meant to purify democracy avoid becoming a test of its very spirit? The question now looms larger than ever as India readies for the crucial 2026 polls. The special intensive revision stands at the crossroads of reform and controversy. Supporters see it as a firewall protecting democracy from manipulation, while critics fear it could silence millions in the name of purification. Whether SIR emerges as a symbol of integrity or a spark for distrust will depend on one defining factor: the fairness of its execution. Because in a democracy built in on every vote, the stakes have never been this high.